What are gram positive and gram negative bacteria? Basically, bacteria, they are categorized into these two categories depending upon their structure of cell wall and their response to gram staining. Now, if we see the structure of bacteria, this can be rod shaped like here, and this can be spherical. When it is spherical, it is called as coccus, and when it is rod shaped, it is called as bacillus. There are other shapes also, and this is the outer covering of the bacteria. So we must know about the outer covering. This is actually cell wall, which is covered by a covering called as mucilage here, like this. So this forms a protective sheet around the internal structure. This is the internal structure of the bacteria, and this membrane is called as plasma membrane. So there are three outlines. One is cell wall, then inner to cell wall is plasma membrane, and outer is covering called as mucilage or capsule. Now this is chemically made up of peptidoglycan, which is made up of acetyl glucosamine, acetylmuramic acid, and a length of amino acids 4 to 5 in length called as peptide chains. This is also called as glycocalyx because it is made up of carbohydrates, which are sugary chains, which are complex with proteins and lipids inside the plasma membrane. Plasma membrane is selectively permeable in nature. So what is the structure of this cell wall of the bacteria? This is very important for determining whether it is gram positive or gram negative bacteria. So this structure is very important, whether it is gram positive or gram negative. Another is response to the gram staining. Now this was discovered by scientist Hans Christian Gram in 1884. So he did certain procedure. This is called as gram staining process or procedure. He stained the bacteria with crystal violet stain, which is a primary stain. So जैसे ये stain होगा तो जितने भी bacteria होंगे they will all turn purple in color. Iodine is also used. Iodine act as a mordant, mean this helps in fixation of the dye. जो dye है उसको cell wall में fix करने में ये मदद करता है. Fix dyes into the cell wall और ये ऐसे करके हमारे पास bacteria का purple color आ जाता है. Then we will wash these bacteria with the alcohol or acetone. अब अल्कोहल और एसीटोन से जब हम वॉश करते हैं दैट एक्ट एज अ डीकलराइजर, मीन वो कलर निकाल देंगे. ठीक है. अब वो जो कलर निकले, कुछ बैक्टीरिया जो है पर्पल रह जाएंगे हमारे पास और कुछ कलरलेस हो जाएंगे. जो कलरलेस हो जाएंगे उनको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि जब हमने उनको वॉश किया तो जो पर्पल कलर सेल वॉल के अंदर गया था वो निकल गया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में नहीं निकलेगा, वो एज सच ही पर्पल या क्रिस्टल वायलेट कलर कैसे रह जाएंगे. तो ये इनको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि जिन्होंने रिटेन कर लिया स्टेन को हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने नहीं रिटेन किया उनको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव. अब ये जिन्होंने नहीं पर्पल कलर रिटेन किया हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव. अब इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर फिर अलग एक और स्टेन से हम स्टेन करें जैसे सेफ्रानिन से, तो इनका जो कलर है दैट विल टर्न पिंक इन कलर. तो ये पिंक कलर के हो जाएंगे ऐसे करके. तो जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया थे उनको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव. और जो जब इनमें से कलर निकल गया फिर से हमने दोबारा काउंटर स्टेन किया, फिर उनमें पिंक या रेड कलर आ गया, जो भी हमने स्टेन यूज़ किया जैसा भी कलर यूज़ किया वही आ जाएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट. तो ये हमारे पास दो तरह के ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं आफ्टर स्टेनिंग. वन इज़ ग्राम पॉजिटिव, दिस इज़ ग्राम पॉजिटिव, एंड दिस इज़ ग्राम नेगेटिव. ये सेल वॉल में डाई कितना रिटेन हुआ है. अब ये जो सेल वॉल में डाई का रिटेंशन है, अगेन दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, कि उसके सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर है, राइट. तो वो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में. अभी हमने देखा है कि पर्पल कलर आ गया, राइट. अब उसमें हमने डिस्कस किया था उसका स्ट्रक्चर क्या होता है केमिकली. पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल है, लेकिन जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया थे या जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनका जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर था दैट वाज कम्प्लीटली थिक. तो उसका जो थिकनेस है दैट इज़ अबाउट 20 to 80 नैनोमीटर, और उसके आसपास कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं थी, और उनमें टिकोइक एसिड थे वॉल के अंदर. सो टिकोइक एसिड हम यहाँ देख सकते हैं. बेसिकली ये टिकोइक एसिड है जो पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ हम देखते हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं. अब ये जो टिकोइक एसिड है बेसिकली ये ग्लिसरॉल के बने होते हैं. ग्लिसरॉल की पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे जैसे ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके
वो जो पूरे सेल वॉल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनको टिकॉइक एसिड बोलते हैं हम. सो ये इनमें टिकॉइक एसिड प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल, प्लस दे हैव अ थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर. एंड ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंड लाइसोएंजाइम. दे हैव a simpler structure and they are less resistant to antibiotics. मतलब वो रेजिस्ट नहीं कर पाते एंटीबायोटिक्स को. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. यहाँ पे हमने ये दिखाया कि ये इसका पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये अंदर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके साथ ही वो जो हमने टिकॉइक एसिड इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये मोटी वॉल है, आप देख सकते हैं मोटी वॉल है इसकी. अब इसके एग्जाम्पल हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई. कोकस वर्ड इंडिकेट करता है स्फेरिकल बैक्टीरिया, राइट. जब ऐसे चेन बन जाती है तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस. बेसिलस स्पीशीज़, जैसे हमने बोला था रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है. तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, टिकॉइक एसिड इंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो थिक वॉल है, इसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एंड दे विल रिटेन द पर्पल कलर, जैसे अभी हमने देखा है. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये पर्पल कलर आ गया. अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसकी जो वॉल है बाहर वाली वो थिन है, राइट. सो वो थिन है और उसकी जो थिकनेस है दैट इज़ अबाउट 2 to 7 नैनोमीटर. और यहाँ पर क्या था 20 to 80 नैनोमीटर, कम्प्लीटली थिक, राइट. अब ये जो थिन वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है विच इज़ मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड्स, लिपिड कंटेंट है इसमें. एंड दैट कैन ट्रिगर स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्सेज. दिस इज़ लाइक मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. जैसे हमने बैक्टीरिया को ख़त्म करना है, हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, सो दे विल नॉट फिनिश ऑफ, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. और ये जो है दे आर लेस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. जब हमने सेफ्रानिन के साथ स्टेन किया या कोई भी काउंटर स्टेन के साथ स्टेन किया तो वो कलर आ गया, उसमें क्रिस्टल वॉयलेट नहीं आया. ये आउटर मेम्ब्रेन इसकी थिन है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक स्पेस है. यहाँ पर ये देख लीजिए पेप्टाइड, ये सेल वॉल हो गई, दोनों के बीच में एक स्पेस है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस, राइट. सो दिस इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दिस इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो अब ये जो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वेदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और दे आर ग्राम नेगेटिव, इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले. एस्चेरिशिया कोलाई, थोड़ा क्लियर नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा. एस्चेरिशिया कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई बोलते हैं इसको. स्पेलिंग हम ऐसे लिख सकते हैं इसके, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी लिख सकते हैं ऐसे करके. देन सैल्मोनेला एंड सूडोमोनास. थोड़े लिखने के टाइम कुछ गड़बड़ हो गई है और स्पेलिंग्स जो है क्लियर नहीं आ रहे, तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं. तो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट. ये इंपॉर्टेंट है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जब डायग्नोसिस होना है, ट्रीटमेंट होना है, या एंटीबायोटिक जो है उनके साथ वो रेजिस्टेंट है या नहीं है, तो ये सारा उसमें हेल्प मदद करेगा. वेदर द बैक्टीरिया दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स और दे आर लेस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. प्लस जो पैथोजन होते हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं, हम उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी. तो आगे से जो ऑर्गेनिज्म कैसे रिएक्ट करता है, उसको रेजिस्ट करता है पैथोजेनिसिटी को या बीमारी को रेजिस्ट करता है, उसको हम इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं. सो ये दो चीज़ें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दिस विल हेल्प इन इम्पॉर्टेंट इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड एंटीबायोटिक सिलेक्शन. दिस विल ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पैथोजेनिसिटी और डिजीज रिस्पॉन्स and immune response, mean organism how it reacts and resists that particular disease. So this is all about gram positive and gram negative bacteria. If you have any question, ask me in the comment box. Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe.